Sir, please begin. Okay, sir. So, good afternoon, everyone. I am Sahil Khatri from the Automobile Department, PITDS. It is a great honor to welcome you, sir, Mr. Harish Pandit, for this webinar, Production Technology related to the automobile engineering. So, Mr. Harish Pandit has a total 8 years experience and he is associated with L&T Knowledge, Vadodara. He is currently working as a senior design engineer at L&T Knowledge City, Vadodara. So, by not wasting much time, I directly hand over this session to the Harish sir. Sir, Thank you, Sahil sir. So we can start with topic production technology for automobile engineering. There is a vast topic regarding the production, but we will take a step by step and complete whole process related to production. But we will take one of the part. In that part, will take as design process, right? So if you manufacturing any product, it is related with design. So first of all, we need to understand what is a design, right? If you need to design anything, any product, any related to vehicle, we need to think about it. What was the function of the part? What was the related this part is installed in this machine. So सबसे पहले हमें सोचना पड़ता है कि किस तरह से हम उसे इंस्टॉल करेंगे, किस तरह से हम उसे वर्कआउट करेंगे. तो सबसे पहले हमें डिजाइन प्रोसेस से ही जानना पड़ता है, राइट? सो थिंक अबाउट इट first of all. So I will explore all those things is a design process. So what is design process of design is the process of make many decision that convert an abstract concept into a hardware related. So first thing इसमें ऐसा है कि सबसे पहले हमें एक ऐसा प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक डिसीजन लेना पड़ता है, प्रोसेस ऑफ मेकिंग मैनी डिसीजंस, राइट? तो मुझे सबसे पहले एक मोटर बनाना है, एक व्हीकल बनाना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक आइडिया जनरेट करना पड़ेगा, राइट? एक ऐसा आइडिया होना चाहिए दैट्स कम टू एन रिलेटिव पिक्चर. इट मीन्स वो एक एक्चुअल पिक्चर में कन्वर्ट होना चाहिए, राइट? इट्स लाइक अ हार्डवेयर, राइट? तो व्हीकल इज ऑल्सो अ हार्डवेयर, बट while we are thinking that na, it is only in mind, but we need to convert in a hardware. So it is actual working process. It is actual working process. So we need to convert into hardware, right? Idea to the hardware, right? Like as great idea means we have different ideas. So we need to consolidate all the ideas and we need to convert into product itself. तो सबसे पहले हम कोई भी चीज डिजाइन करने जाएंगे तो हमारे पास एक ऐसा ग्रेट आइडिया होना चाहिए जिससे हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर सके. लेकिन वो आइडिया मैनी डिसीजंस मीन्स बहुत सारे डिसीजन से कंसोलिडेट होके एक आइडिया जनरेट होता है, राइट? दैट इज अ प्रोडक्ट. So first of all thing, if you have designed the vehicle, you need to design the vehicle. Think about it. We need 6 wheels, 8 wheels, number of wheels, 12 wheels. First of all, think about that, because if you are not think about that, so how can you manufacturing the part? Example like that, if you are need to design a vehicle like as engine, right? 200 HP vehicle,
200 cc, 300 cc, 500 cc. First of all, we need to decide that how much the vehicle have cc, 300, 400, 500. First of all, we need to decide that. Then after, we need to explore in that product and abstract the concept into hardware related, right? So सबसे पहले हमारे पास एक ग्रेट आइडिया होना चाहिए कोई भी प्रोडक्ट को कंप्लीट करने के लिए, दैट इज प्रोसेस ऑफ डिजाइन. डायरेक्टली हम कोई भी प्रोडक्ट हम क्रिएट नहीं कर देते, उसके लिए एक प्रोसेस, डिजाइन फेज से, प्रोसेस से हमें जाना पड़ता है. तो दैट इज अ प्रोसेस ऑफ डिजाइन. नेक्स्ट वन इज 7 स्टेप्स ऑफ डिजाइन प्रोसेस. तो सबसे पहले हमारे पास एक्चुअली में डिजाइन प्रोसेस में हम डायरेक्टली ऐसा नहीं सोचेंगे कि हम प्रोडक्ट बना देते हैं. डायरेक्टली वी कांट एबल टू create a product. We need to think about it. What is a problem? You have definite problem. Example, if you have paper, but someone has invented pen, right? Related to pen. You have write on the paper, it is related to pen. Pen is also invented, right? Pen, pencil, different thing. So problem is that how can write? So we need to invented a pen, right? So you have a problem. So there is a different problems. Some like as vehicle, example as automobile related, right? Vehicle. We need to we need to design a tire, right? First of all, they are used as simple tube and tire, right? Simple tube and tire. And now onwards, the technology is different ways, right? टेक्नोलॉजी बहुत ही डिफरेंट हो चुकी है. तो अब क्या यूज करें? ट्यूबलेस टायर. तो सबसे पहले एक स्टेप जा चुका है, उसमें हम लोग को ट्यूब यूज करते थे, अभी वो ट्यूब नहीं यूज करते. तो हमें ट्यूब यूज नहीं करना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो दैट इज अ ट्यूबलेस टायर, राइट? तो डिफाइन द प्रॉब्लम. कोई भी प्रोडक्ट डिजाइन करने से पहले तुम्हारे पास डिफाइन द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम तुम्हें पता होनी चाहिए, प्रॉब्लम क्या है कि मुझे बिना ट्यूब वाली टायर बनानी है. दैट इज अ प्रॉब्लम. आफ्टर दैट ब्रेनस्टॉर्म. व्हाट इज ब्रेनस्टॉर्म? ब्रेनस्टॉर्म मीन्स देयर आर ऑल एक्सपर्ट गाइज. वी नीड टू टॉक विथ ईच अदर एंड डिस्कस विथ ईच अदर इन दैट सेम प्रॉब्लम. हम सब क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे सेम प्रॉब्लम के ऊपर कि ये प्रॉब्लम एक्चुअल में हार्डवेयर हम बना सकते हैं इसका हार्डवेयर. दैट इज अ ब्रेनस्टॉर्म. वी नीड टू डिस्कस विथ ईच अदर एंड वी कैन सॉल्व विथ ईच अदर, राइट? देन आफ्टर रिसर्च देयर इज अ स्टेप बाय स्टेप. You can't able to direct go to find the problem to directly improve the design, right? If you need to improve the design, if last step, if you need to improve the design, you have any existing design product, you have, right? तुम्हारे पास सबसे पहले एग्जिस्टिंग कोई प्रोडक्ट होना चाहिए इंप्रूव डिजाइन करने के लिए, इंप्रूव. लेकिन हमारे पास क्या है? हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है. तो हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि मेरे पास पेपर है लेकिन मेरे पास पेन नहीं है. एक ऐसा पेन डिजाइन करना है जो ह्यूमन कंफर्ट हो सके, क्योंकि हम कोई भी चीज डिजाइन करते हैं व्हेनेवर वी हैव complete we have designed something, right? So we have specific problem on that. It means I have paper but I don't have pen, right? So brainstorming means we can discuss with each other, right? Research, we can find out something else in a website, all those things, right? Necessary to the pen. How can we can build it? How can we can create into the hardware, right? तभी तो कस्टमर सेटिस्फाई हो पाएगा. Then after this develop ideas, then choose the best ideas, then we can create a model or prototype, then after that test and evaluate, and after that last one is improve design. There is a several steps, right? So we need to
we need to explore all the steps into the one by one. First one is a define the problem. It means define the problem is like conducting defective work. You must examine the evidence of the some conclusion. It means that you have a defective work, right? So if you have, if you need to conclusion on that defective work, means हमारे पास एक ऐसा एक प्रॉब्लम है लेकिन हमें उसका कंक्लूजन निकालना है। तो हमारे पास कोई भी डिजाइन करने के लिए सबसे पहले प्रॉब्लम होना जरूरी है। सबसे पहले हमारे पास एक ऐसा प्रॉब्लम आया, जैसा मैंने एक एग्जांपल दिया था, एक व्हीकल में एक ऐसा एक प्रॉब्लम है कि बार बार मुझे वो व्हीकल जो होता है पंचर हो जाता है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ट्यूब निकालना पड़ेगा। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि ट्यूब यूज ना करें और हम ट्यूबलेस टायर बनाते हैं। दैट इज अ प्रॉब्लम, क्यों मैं पंचर रिपेयर करूँ, राइट? सो we need to explore that only on the tire, why we are using tubes, right? So that is a problem, right? After that, brainstorm. So if you have brainstorm, involve a group of people together to generate many different ideas, right? So if you have problem like as 1 2 3 4 different 10 problems, right? So consider that हम एक कोई एक एग्जांपल कंसीडर करते करते लास्ट तक जाते हैं। तो फर्स्ट वन हम कंसीडर करते हैं, व्हीकल में हम ऐसा एक ब्रेनस्टॉर्म करते हैं कि हमें ट्यूब यूज नहीं करना है, राइट? ट्यूबलेस टायर बनाना है। दैट इज अ आइडिया। आफ्टर दैट दे कम टू इन रियलिटी पिक्चर, राइट? into convert into hardware and product, right? First of all, they have to convert into design, and after that they convert into hardware. So they have different ideas, they have problems, but we need to convert into different ideas, different based ideas. After that we need to convert into a actual model, right? So we will consider as we have problem in the vehicle, like as we need to we need to replace the tubes instead of tubeless tire. So we can use a tubeless tire, we need to design a tubeless tire. So what is a brainstorming? Brainstorming is that there is a many people, it means expert people discuss with each other, expert people discuss with each other on that problem. We need to solve that problem. How can we solve that problem? Instead of, we can use tubeless tire, right? We can use the tubeless tire and we can replace the tube, right? How? Problem is that we can we can give a extra time on the हमें एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है किसके लिए? बेसिकली हमें ट्यूब को रिप्लेस करने के लिए इतना कॉस्ट ज्यादा हो जाता है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ट्यूब की भी एक कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज्यादा लगता जाता है। तो कंपनी ने, जैसे अपोलो टायर, बड़ी बड़ी कंपनी है जितनी भी है, उन्हें सबने डिसाइड किया कि टेक्नोलॉजी को इंक्रीज करके हम अभी ट्यूबलेस टायर पे वर्क करते हैं। तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी भी आगे जा रही है और ट्यूब को वो लोग रिप्लेस कर रहे। दैट इज वन पार्ट व्हाट आई एम डिस्कसिंग। देयर इज मेनी टेक्नोलॉजी which already replace that, right? जैसा कि अभी MPFI सिस्टम आया है, मल्टी फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम आया है, राइट? DTSI आया है। तो पहले हम टू स्ट्रोक यूज करते थे, टू स्ट्रोक फोर स्ट्रोक इंजन यूज करते, टू स्ट्रोक फोर स्ट्रोक यूज करते थे, वो भी हम लेसर पे यूज करते थे। और हाई स्पीड इंजन आ चुका है। इट मीन्स दैट हमें कोई ना कोई प्रोडक्ट को डेवलप करना पड़ता है, टेक्नोलॉजी के अंदर हमें रखना हो तो, राइट? पहले ट्यूब वाला यूज करते थे, अब ट्यूबलेस टायर हो गया। इंस्टेड ऑफ दैट अभी कुछ नया इन्वेंट भी कर रही है कंपनी, बड़ी बड़ी जो MNC कंपनी है वो भी इन्वेंट कर रही है, कुछ नया ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रही है, डिस्कस कर रही है रिलेटेड टू ह्यूमन कंफर्ट के लिए, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए, कस्टमर को सेटिस्फाई होने के लिए वो कंटिन्यू ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। कोई भी कंपनी होती है उस पर वर्कआउट करते हैं और न्यू टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करते हैं।
just I have given an example related to tubeless tire, right? So the many expert people discuss with each other regarding that problem, and we can solve that problem into the different ideas. We have different ideas, we have different problem, and they generated different ideas. वो क्या कर रहे हैं, different प्रॉब्लम है, उसको different आइडियाज में जनरेट करते हैं. कुछ लोग ऐसा बोल रहे, डिस्कस करने में, मीटिंग में डिस्कस करते हैं, उसमें कंक्लूजन आता है क्यों ना हम ट्यूब यूज ही नहीं करते, क्यों ना हम एक काम करते हैं कि जनरली हम ओनली व्हीली यूज करते, क्यों ना फाइबर का टायर रख देते. दैट इज अ आइडिया, बट it is in actual practice, it is used in actual practice or not. We need to model it, we need to we need to convert into hardware, right? So brainstorming is just a idea, not a actual product, right? just a idea, brainstorming just a idea है. हमें डायरेक्टली ऐसा नहीं है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद डायरेक्टली हमें पता नहीं चल जाएगा कि हमें यही चीज बनानी है, राइट? तो वो एक जस्ट एक आइडिया है, और हमें वो आइडिया को क्या करना है, कलेक्ट करना है. प्रॉब्लम में से आइडिया को कलेक्ट करना है कि स्टील का टायर रख देते हैं, नहीं काम करते सिंगल टायर रखेंगे. दैट इज अ डिफरेंट आइडिया. इट मींस brainstorming is discuss with each other and we need to collect all the ideas, right? Next one is research. Research means that रिसर्च में हम ऐसा कर सकते हैं, देखो, रिसर्च में रिक्वायर गोइंग टू लाइब्रेरी, यूजिंग कंप्यूटर डेटाबेस, राइटिंग लेटर्स, परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट्स एंड आस्किंग क्वेश्चंस, राइट? इट मींस क्या है रिसर्च में क्या करेंगे, स्टैंडर्ड्स देखेंगे कि अभी मैं बोल रहा हूँ एक्चुअल में कि हम कोई टायर डिजाइन करना है, राइट? तो रिसर्च देखेंगे किस टाइप का मटेरियल मिलता है, राइट? मार्केट में स्टैंडर्ड मटेरियल किस टाइप के हैं, एस्बेस्टोस मटेरियल हम यूज कर सकते नहीं, कार्बन टाइप का मटेरियल यूज कर सकते कि नहीं. तो वी हैव नॉलेज अबाउट मटेरियल साइंस, राइट? तो मटेरियल साइंस का भी थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, जिसके रिलेटेड हम टायर के बेसिस पे से हम लोग को मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, प्रोडक्ट डिजाइन कर सकते हैं. वी नीड टू नॉलेज अबाउट द मटेरियल साइंस, राइट? सो हम क्या करेंगे, कंप्यूटर डेटाबेस में से रिसर्च करेंगे कि हम ये इस टाइप का बना, इस स्टैंडर्ड्स निकालेंगे, यूट्यूब में सर्च करेंगे, डिफरेंट वीडियोस देखेंगे, इंटरनेट पे सर्च करेंगे. दैट इज ऑल आर रिसर्च, not a right product, right? We are not going to a right product. There are different ideas, but we need to add a standard things, right? मार्केट में अभी तुम सोच रहे होगे, तुम्हारे पास प्रॉब्लम है कि हमें एक टायर बनाना है, एक हमें ट्यूबलेस टायर बनाना है. दैट इज आइडिया, बट टेक्नोलॉजी आर यूजिंग, but we think about it, we need to include a more, improve that design, improve that tire. How can we can improve that tire design? So we need to explore different problems into a different solutions. So we need to going for the research. मार्केट क्या बोल रहा है, मार्केट में अभी क्या यूज कर रहे हैं. हम लोग को अभी ट्यूब पे काम करेंगे तो मार्केट वाले क्या करेंगे, मार्केट वाले उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, ट्यूबलेस टायर पे वर्क कर रहे हैं, राइट? तो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे उसके ऊपर, परफॉर्मिंग करेंगे डिफरेंट और रिसर्च करेंगे. हम कंप्यूटर डेटाबेस में से निकालेंगे डेटा, आईएसओ स्टैंडर्ड्स देखेंगे उसके कि ये नॉर्म्स में आता है कि नहीं आता है, राइट? ये हम जो डिजाइन कर रहे हैं दैट इज इन आईएसओ स्टैंडर्ड, आईएसआई, एएसआई स्टैंडर्ड्स, राइट? एक्सपर्ट पूछेंगे, सर्वे करेंगे मार्केट में. दैट इज अ डिफरेंट थिंग्स इन पिक्चर ऑफ रिसर्च, ओनली रिसर्च. आरएनडी बोलते हैं ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट. रिसर्च एंड डेवलपमेंट मींस there is a different books like RS Khumi and all those things, right, related to engineering, right? So we need to read all those things and we need to conclude, we need to solve that problem into a perfect solution, right? On the next slides, right,
research. So in that research, we have got the different ideas, right? Different ideas, but we can segregate different ideas into the different group. That is known as a develop ideas. Means मेरे पास एक आइडिया ऐसा है लेकिन उसको डेवलप करना है. कोई ऐसा मुझे बोलता है एक ऐसा ट्यूब ले लो जिसमें एक ऐसा टायर ले लो जिसमें ट्यूब भी ना हो, लेकिन मुझे ऐसा तो उसके पीछे रिसर्च करना पड़ेगा वो आइडिया के पीछे कि हम हाँ चलो टायर ले लेते हैं, लेकिन वो कौन सा मटेरियल का होना चाहिए, शेप कैसा होना चाहिए, साइज कैसा होना चाहिए. इट मीन्स दैट वो प्रॉब्लम है तो उसका हम सॉल्यूशन पे और डीप में रिसर्च करते हैं, वो आइडिया को सॉल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं, राइट. दैट इज नोन एज अ डेवलप आइडियाज. वी आर जनरेटिंग आइडियाज. हम लोग को जनरेट कर सकते हैं लेकिन उसको डेवलप करना है, स्मूथ करना है. तो मार्केट में हम स्टडी करते हैं कि हम टायर बनाएंगे तो ये मटेरियल मार्केट में अवेलेबल है, मिलेगा मुझे, चलो टायर तो हम बना देंगे, लेकिन ये मार्केट में मुझे ये ये इस टाइप का मटेरियल मुझे मिलेगा, इस टाइप का मुझे मैन्युफैक्चरिंग मिलेगी, मुझे डाई है वो सब मिलेगा, मुझे मशीन मिलेगा, पंचिंग मशीन मिलेगा. ये सब चीज वो लोग क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, राइट. डेवलप मल्टीपल आइडियाज दैट विल बी सॉल्व द प्रॉब्लम एंड मीट द रिक्वायरमेंट. द ऑल्टरनेटिव मे बी ऑल द क्विट रिसर्च. मीन्स तुम्हारे पास 5 प्रॉब्लम है लेकिन उसका सॉल्यूशन 100 है, राइट. सो हम 100 सॉल्यूशन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, लेकिन उसमें से हम 5-6 आइडिया को या 5 और 6 आइडिया को हम क्या कर सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं, और उसको वो सॉल्यूशन को हम क्या करेंगे, एक्चुअल बेसिस पे लेंगे, राइट. कि वो आइडियाज जो है, आइडियाज दिया है, किसने आइडिया दिया, उसका साइज क्या, शेप क्या है, साइज क्या है, राइट. सो हमारे पास एक्चुअल आइडिया को डेवलप करने के लिए हमारे पास डेफिनेट सॉल्यूशन होना चाहिए, और उस डेफिनेट सॉल्यूशन तभी होगा जब हम वो प्रोडक्ट को डेवलप करेंगे, राइट. वो आइडियाज को डेवलप करेंगे. वो आइडियाज को डेवलप करने के लिए हमारे पास डीपली नॉलेज एक्सपर्ट्स के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग रिसर्च करना बहुत ही जरूरी है, राइट. नेक्स्ट वन, choose a best ideas. There is a steps, that is only a designing process, right. ये हमारा एक डिजाइनिंग फेस है. हम डायरेक्टली हम कोई भी प्रोडक्ट पे जंप नहीं कर सकते, हम फेल हो जाएंगे. तो ये हमें क्या, हमारे पास क्या है, देयर इज अ 1000 ideas, we are develop only 10 ideas. In 10 ideas we just select 2 ideas. All our negative ideas we can extract from that problem. तो हम क्या करेंगे, वो आइडिया को ही सिलेक्ट करेंगे जो राइट, जो बेस्ट होगा और जो आइडिया को हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वही आइडिया को सिलेक्ट करेंगे जो हमारा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर सके. डिसाइडेड ऑन आइडिया दैट बेस्ट मीट द क्राइटेरिया. क्राइटेरिया मीन्स प्रॉब्लम. हमारे प्रॉब्लम को जो सॉल्यूशन दे सके वैसा हमें आइडिया सिलेक्ट करना है, राइट. एंड देन फिट्स within the constraint and his least amount of negative characteristic. means कोई भी तुम डिजाइन करते हो, प्रोडक्ट डिजाइन करते हो, उसके लिए बेस्ट आइडिया कैसे सिलेक्ट करते हैं, तो उसके लिए तुम्हारे पास स्पेसिफिकेशन होना जरूरी है. स्पेसिफिकेशन मीन्स कि तुम्हें टायर बनाना है, मीन्स टायर का साइज तो होगा, राइट. एक स्पेसिफिक साइज, वो साइज तुम्हें मालूम होना चाहिए, वो हमारे क्राइटेरिया में फिट हो, राइट. साइज, shape, material, that all the specification meet your based idea. सभी स्पेसिफिकेशन तुम्हारा जो है वो तुम्हारे आइडिया के साथ मीट होने चाहिए, तब तुम जाके वो बेस्ट आइडिया को कन्वर्ट कर सकते हो एक गुड प्रोडक्ट के रिलेटेड. नहीं तो क्या होगा, हमारे पास 1000 ऑफ सॉल्यूशंस तो आ जाएंगे. 1000 ऑफ सॉल्यूशंस कहाँ से आएंगे, एक्सपर्ट्स के थ्रू आएंगे, राइट. एक्सपर्ट्स जब ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे तब आएंगे, लेकिन
हमें वो 1000 ऑफ आइडियाज को कन्वर्ट करने होंगे एक स्पेसिफिक बेस्ड आइडिया में। उसके लिए हमें एक स्पेसिफिकेशन जो है वो हमें फिक्स करना पड़ेगा। वो स्पेसिफिकेशन में डिफरेंट डिफरेंट साइज, शेप, मटेरियल, अवेलेबिलिटी, राइट, फेलियर, सभी चीज आएगी स्पेसिफिकेशन में रिलेटेड टू प्रोडक्ट। वो सभी चीज तुम्हारे बेस्ड आइडिया के साथ मीट होने चाहिए। और लीस्ट अमाउंट ऑफ नेगेटिव आइडियाज को एक्सट्रैक्ट कर दो, उसको निकाल दो, राइट। देन आफ्टर यू कैन लिस्ट आउट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, राइट। ये बेस्ड आइडिया है, इसके अंदर कौन से पॉजिटिव थिंग्स है, कौन से नेगेटिव थिंग्स है, वो सब एक्सप्लोर करो। जिससे क्या होगा, तुम्हारा जो बेस्ड आइडिया है उसको हम एक्चुअल प्रोडक्ट में हम कन्वर्ट कर सके, राइट। नेक्स्ट वन, प्रोडक्ट डिजाइन। Product design. Product design, a new product goes through an analytically process and relies on a problem solving approach to improve the quality of life and user and his own interaction with environment. It is about and problem solving, about visualizing needs of the user and bringing a solution. प्रोडक्ट डिजाइन एक एनालिटिकल प्रोसेस है। अभी क्या होगा, वो बेस्ड आइडिया को हम प्रोडक्ट डिजाइन करेंगे। एक्चुअल में कैड मॉडल में हम डिजाइन करते हैं कि उसका जो साइज है, उसका जो शेप है, वो हमारा बेस आइडिया के अंदर फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमारा जो बेस्ड आइडिया जो है वो हम डिजाइन, प्रोडक्ट डिजाइन में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसा हमने बताया था, एक टायर, हमें ट्यूबलेस टायर डिजाइन करना है। तो मैंने एक बेस्ड आइडिया दिया है कि उसका साइज और शेप इस तरह से होना चाहिए, राइट। उसका साइज और शेप कंप्लीटली इस तरह से होना चाहिए, कोनिकल शेप होना चाहिए, मटेरियल तुम्हारे पास एस्बेस्टॉस मटेरियल होना चाहिए, कार्बन मटेरियल होना चाहिए, परफेक्टली राउंड एंड शेप, रफ टाइप होना चाहिए, राइट। और ये सब स्पेसिफिकेशन को लेके हम लोग को प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं। तो प्रोडक्ट डिजाइन के अंदर सबसे पहले हमें कैड मॉडल में हम उसके आउटर पेरिफेरी है, जैसा कि अभी कोई इंजन के अंदर भी बोल्ट डिजाइन करना है तो हमें, हमारे पास इंजन होना बहुत जरूरी है, राइट। तो जैसा कि मैंने बताया कि हमें ट्यूबलेस टायर डिजाइन करना है तो मेरे पास व्हीकल होना जरूरी है। क्यों? तो तभी तो मेरा टायर जो होगा वो फिट होगा व्हीकल के अंदर। तो उसका आउटर कंस्ट्रेंट बहुत ही नेसेसरी है। अभी मैं तुम्हें बोल दूं कि डायरेक्टली कि तुम डिजाइन करो टायर, तो ऐसा ना हो कि व्हीकल जितना बड़ा है, साइज का है, उतना तुम बड़ा टायर डिजाइन कर दो, राइट। दैट इज अ डिफरेंट कंस्टेंट। उसका साइज, शेप, वो हमारा व्हीकल के साथ मैच हो रहा है कि नहीं होगा। इट इज ओनली अ कंस्टेंट। वी नीड टू चेक द कंस्टेंट, आउटर कंस्टेंट, राइट, आउटर पेरिफेरी, राइट। जैसा कोई भी इंजन इंस्टॉल करते हैं तो इंजन का जो होल है, इंजन का जो माउंटिंग होल है वो हमारा मैच होना चाहिए। इंजन जहां माउंट होने वाला है उसका बोल्टिंग भी मैच होना चाहिए। जैसा कि एक पिक्चर में दिखाया, देखो बीच में दो होल है, राइट। मैं स्लाइड शो में देखो, दो होल है, वो दो होल मुझे कोई कंस्टेंट की वजह से वहां पे मैच होना चाहिए, इंस्टॉलेशन होना चाहिए। ये कब होगा? जब तुम कैड मॉडल में एक्चुअल में प्रोडक्ट तुम डेफिनेट साइज, डेफिनेट शेप, एग्जैक्ट मटेरियल, वो सब तुम कंक्लूड करोगे, डिफरेंट साइज एंड शेप, दैट एग्जैक्टली डिफरेंट साइज एंड शेप। ये पूरा जो होगा तभी प्रोडक्ट डिजाइन में होता है, तब जाके तुम एक्चुअल प्रोडक्ट तुम बना सकते हो। देयर इज अ डिफरेंट बेस्ड आइडियाज वी नीड टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट डिजाइंस, कि उसका शेप कैसा होगा, उसका साइज कैसा होगा, ये प्रोडक्ट को हम कौन से प्रोसेस में बनाएंगे, दैट इज डिफरेंट थिंग। ये प्रोडक्ट जो है वो कास्टिंग में बन सकता है, फॉर्जिंग में बन सकता है, राइट। ये बेस्ड आइडिया का कॉस्ट भी कम होना चाहिए। बाद में क्या होता है, वैल्यू इंजीनियरिंग भी करते हैं
कंपनीज जो होती है, डिफरेंट कंपनीज, दे आर वर्क ऑन वैल्यू इंजीनियरिंग, मीन्स कॉस्ट भी कम होनी चाहिए और प्रोडक्ट रिलेटेड हमारे पास मटेरियल की अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए, राइट। फास्ट में मास प्रोडक्शन होना चाहिए। मास प्रोडक्शन क्यों, मुझे एक थोड़ी ना बनाना है, एक बनाने में मुझे एक दिन लग रहा है, कॉस्ट बहुत ज्यादा लग रहा है, तो फास्ट प्रोडक्शन करने के लिए मैं उसको कास्टिंग में यूज करूंगा। दैट इज अ आइडिया। हम डायरेक्ट इसको फॉर्जिंग में विदाउट आइडिया, विदाउट डिजाइन प्रोसेस हम चालू कर देंगे इसे फॉर्जिंग में बनाने के लिए, तो पूरा एक दिन प्रोसेस लग जाएगा इसको बनाने में। हम कास्टिंग में बहुत इजीली से बना सकते हैं, फिर हमें मशीनिंग करना पड़ेगा, तो एक दिन में 3 प्रोडक्ट भी बन सकता है, राइट। तो हमारे पास बेस्ट आइडिया होने चाहिए कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट डिजाइन करने के लिए, राइट। देयर इज अ डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस एंड डिफरेंट डिफरेंट रेडियस, वो हम इसके लिए देते हैं क्योंकि ये प्रोडक्ट कास्टिंग में से निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ये कास्टिंग में से इजीली बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। दैट इज अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, दैट इज अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ओनली अ मैन्युफैक्चरिंग। ये सिंपल एक प्रोडक्ट तुम्हें दिखाया है। हियर इज इंजन, राइट। इंजन का जो माउंटिंग है, हमें माउंटिंग, प्रॉपर माउंटिंग हमारे पास हमारे व्हीकल में इंस्टॉलेशन होना चाहिए। ये व्हीकल, ये जो इंजन है कोई दूसरी जगह से मैन्युफैक्चरिंग होके आता है। अभी हीरो होंडा की जो कंपनी है, वॉटेवर जो एक्स कंपनी है, वो सभी पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती है। जैसा इंजन होता है वो कोई डिफरेंट कंपनी से आता है, साइलेंसर जो है वो डिफरेंट कंपनी से आता है, लेकिन उसका जो कॉम्बिनेशन होता है वो एक ही कंपनी करती है, राइट। दैट इज मीन दैट सभी जो प्रोडक्ट है वो सभी प्रोडक्ट कोई एक ही कंपनी नहीं बनाती है, वो सब डिफरेंट 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 कंपनी बनाती है, राइट। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे टायर है जो अपोलो बना रही है, इंजन जो है वो कमिंस करके कंपनी बनाती है, लेकिन उसका जो स्पेसिफिकेशन है, कमिंस इंजन ऐसे ही नहीं बना देती, उसका स्पेसिफिकेशन मुझे डिफरेंट कंपनी के पास से लेनी पड़ती है जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। इट मीन्स हीरो होंडा इज मैन्युफैक्चरिंग हीरो होंडा बाइक, तो उसका जो टायर है वो टायर अपोलो बनाएगा, बल्कि हीरो होंडा नहीं बना रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका स्पेसिफिकेशन, अपोलो वाले क्या करेंगे, स्पेसिफिकेशन मांगेंगे कि तुम्हारा रिम का साइज क्या है, रिम का आउटर पेरिफेरी साइज कितना है, इनर पेरिफेरी साइज क्या है, राइट। ये सब क्राइटेरिया को मीट करता है कि नहीं करता है, नहीं तो साइज और शेप मैच नहीं हो पाएगा, ट्रायल एरर ही होते रहेगा। तो प्रोडक्ट डिजाइन में सबसे पहले ये कंक्लूड करना है कि हमारा जो प्रोडक्ट है इट इज रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरेबिलिटी और नॉट, ये मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है कि नहीं हो सकता है, वो भी प्रोडक्ट डिजाइन का एक क्राइटेरिया है। वो नहीं हो पाएगा प्रोडक्ट डिजाइन में, हमें कैसा पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट डिजाइन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो हमें हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू we need to design all those things, all dimensions into a CAD मॉडल। पूरी व्हीकल हमें CAD मॉडल में डिजाइन करनी पड़ेगी। ऑल दोज थिंग, ऑल सब, रेडियस है, डायमीटर है, ये सब डिजाइन करेंगे। देन आफ्टर वी नीड टू कॉम्बिनेशन ऑल दोज थिंग्स लाइक अ पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंकशाफ्ट। आफ्टर दैट वी नीड टू असेंबल ऑल दोज थिंग्स, पिस्टन है, कनेक्टिंग रॉड है, क्रैंकशाफ्ट है, सबको असेंबल करेंगे। असेंबल करने के बाद हम उसके ऊपर देखेंगे कि दैट इज अ वर्किंग प्रोसेस और नॉट वर्किंग, राइट, दैट इज वर्केबल और नॉट वर्केबल, द स्पेसिफिक द स्पेसिफिकेशन मीट्स अवर क्राइटेरिया और नॉट। हमारा जो स्पेसिफिकेशन है, जो भी हीरो होंडा जो डिमांड कर रहा है, वो हमारा स्पेसिफिकेशन मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, राइट। तो वो सब क्राइटेरिया हमारा आता है डिजाइन प्रोसेस में। तो डिजाइन प्रोसेस में सबसे पहले प्रोडक्ट डिजाइन में डिफरेंट आइडिया को कन्वर्ट करते हैं हम एक्चुअल कैड मॉडल में, राइट। एनालिटिकल प्रोसेस मीन्स व्हाट, एनालिटिकल मीन्स वी नीड टू कैलकुलेट समथिंग, numbers, calculate center distance between two holes. What is the center distance between two holes? यहाँ पे जो सेंटर डिस्टेंस है वही एक्चुअल व्हीकल में होना चाहिए, कैड मॉडल में भी होना चाहिए, एक्चुअल व्हीकल में भी होना चाहिए, तभी जाके तुम्हारा क्या होगा, असेंबल होगा ये पार्ट। नहीं तो क्या हो जाएगा, असेंबल नहीं हो पाएगा। हम ये मैन्युफैक्चरिंग कर देंगे,
फिर चेक करेंगे कि भाई अपोलो का जो टायर है वो हीरो होंडा के बाइक में फिट हो ही नहीं रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा जो कॉम्बिनेशन है वो मैच नहीं हो पाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो तुम्हारा जो स्पेसिफिकेशन एक्चुअल में स्पेसिफिकेशन है वो हीरो होंडा के लिए फिट नहीं है, राइट। तो क्या करता है डिफरेंट, वो खुद का स्पेसिफिकेशन इसको देगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले कैड मॉडल में क्रिएट करते हैं पार्ट को। कैड मॉडल में क्रिएट करने का पर्पस यही रहता है कि हमारा जो स्पेसिफिकेशन है वो हमारा स्पेसिफिकेशन एक्चुअल में मीट होगा है कि नहीं होगा, सेंटर डिस्टेंस मीट होगा है कि नहीं होगा, ये सब कैलकुलेटिव है, दैट इज अ एनालिटिकली प्रोसेस, राइट। आफ्टर दैट important point, right, you have design in CAD मॉडल। आपने समझो कि कैड मॉडल में पूरा डिजाइन कर दिया है, राइट। कैड मॉडल में डिजाइन किया, यू हैव डिजाइन ऑल दोस थिंग, ऑल दोस स्टफ्स इनटू अ कैड मॉडल, राइट, रिलेटेड टू व्हीकल। टायर डिजाइन कर दिया, व्हाटएवर, तुमने पूरी व्हीकल डिजाइन कर दी, बॉनेट डिजाइन कर दिया, इंजन, रिम, स्टीयरिंग, पिस्टन, सिलेंडर, ऑल दोस थिंग्स, राइट, डिजाइन, बट इट इज इन एक्चुअल वर्किंग प्रोसेस, right, it is an actual working process. Model building is used to gather additional information, test, design ideas. Example, realistic drawing or rendering helps you visualization what the solution look like in a real life. It means क्या है कि हमारा जो डिजाइन है वो एक्चुअल में वर्क करने वाला है, एक्चुअल में वर्क करेगा, इट इज एप्लीकेबल इन ऑल द व्हीकल्स, इट इज एप्लीकेबल इनटू द हार्डवेयर, एक्चुअल प्रोडक्ट, that is a model or prototype. Model or prototype means we have designed only a single product, why single product, because we need to test it first of all taste it. If we are designing this product into the CAD model, they directly not going in manufacturing in a mass production, they are not going to manufacturing in mass production, ये directly manufacturing नहीं करेगा mass production के लिए। first of all we need to create a model or prototype means only a single model for the manufacturing, एक ही मॉडल बनाएंगे मैन्युफैक्चरिंग के लिए फॉर द टेस्टिंग पर्पस, ओनली फॉर द टेस्टिंग पर्पस, राइट। तो एक एग्जांपल भी देगा हूं, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, एक मुझे ट्यूबलेस टायर आइडिया में से जनरेट हुआ, रिसर्च किया मैंने, उसके बाद मैंने टोटली सब ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, सब करने के बाद मुझे पता चला कि ये टायर हम मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, ये ट्यूबलेस टायर मैन्युफैक्चरिंग कर सकते, बट डायरेक्टली हम मास प्रोडक्शन नहीं डालेंगे कि मास प्रोडक्शन चालू कर दो। प्रॉब्लम इज दैट जब तुम मास प्रोडक्शन में इसे डाल दोगे और इन बिटवीन वो फेल हो गया तो सबसे पहले क्या करते हैं, कोई भी व्हीकल, कोई भी टायर, जो कोई भी चीज है वो डिजाइन होता है तो सबसे पहले उसका टेस्टिंग होना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले उसको टेस्टिंग करते हैं, टेस्टिंग में वो फेल हो जाता है, इन अ टेस्टिंग द प्रोडक्ट गेट्स फेल्ड, we need to design, we need to improve your design, we need to extract that failures into the actual reality product। हमें क्या करना पड़ेगा, वो सब फेलियर्स को निकालने पड़ेंगे, राइट। बाई चांस तुमने ट्यूबलेस टायर डिजाइन किया और फेल हो गया, टेस्टिंग में फेल हो गया, क्योंकि तुम प्रोटोटाइप जब बनाओगे, जैसा कि प्रोटोटाइप बनाया है उसमें फेल हो गया है, तो तुम किस में कन्वर्ट करोगे, तुम उस पर टेस्टिंग करोगे, फेल हो गया तो कौन से क्राइटेरिया में फेल हुआ, तुम्हें वो सब आइडियाज नोट डाउन करने हैं, फिर उसको हम ब्रेनस्टॉर्मिंग में डालेंगे और फिर उसको कन्वर्ट करेंगे एक्चुअल प्रोडक्ट में, राइट। दैट्स व्हाई वी आर गोइंग फॉर प्रोटोटाइप में ओनली सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, सिंगल प्रोडक्ट में ही हम उसके ऊपर डिफरेंट प्रोसेस करते हैं, राइट। दैट इज ओनली अ स्केल मॉडल मीन्स क्या, एक्चुअल प्रोडक्ट बनाने की भी जरूरत नहीं है, स्केल मॉडल बनाते, इट मीन्स 50:1 में, जैसा कि हमारे पास कोई एक प्रोडक्ट है,
रिलेटेड टू कनेक्टिंग रॉड बहुत ही बिगड़ है, उसको स्मॉलर प्रोडक्ट में बनाओ, वो स्मॉलर प्रोडक्ट एक्चुअल प्रोडक्ट की तरह वर्क करता है कि नहीं करता है, इसके लिए हम प्रोटोटाइप करते हैं, नॉट अ मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन नहीं करना है। कोई भी बड़ी बड़ी कंपनी है, एमएनसी कंपनी है, सबसे पहले प्रोटोटाइप बनाती है, और प्रोटोटाइप बनाते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, रिसर्च करते हैं, ये सभी का प्रोसेस करने का टाइम जो है वो मिनिमम डिपेंड्स अपॉन अ एप्लीकेशन, डिपेंड्स अपॉन अ प्रोडक्ट, वो 3 से 4 साल भी लग जाता है वर्क करते करते। ओनली अ आइडियाज, only a design, only a prototype, after that they are going to the manufacturing। अभी एक एग्जांपल लेते हैं हम कि हमें कोई व्हीकल जैसे कि नैनो, ये टाटा नैनो वाले ने नैनो लॉन्च किया था 2009 में, तो उन्होंने डिजाइन कब से चालू किया होगा? 2005 से, 2004 से, राइट। डिजाइन, आइडियाज, ब्रेनस्टॉर्मिंग 2006 में, 2007, 2008, आफ्टर दैट टेस्टिंग, मॉडल और प्रोटोटाइप, all those things, they need to extract all those time and research on internet, all those things, I discuss with experts, and we need to create a CAD model for 1 and 2 years, right? After that they launched their product in 2009, right? तो हमारे पास एक एग्जैक्ट ऐसा पीरियड होना चाहिए, मतलब हम अभी कोई प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं ना, तो वो डिपेंड है कि तुम प्रोडक्ट कौन सा डिजाइन कर रहे हो, वो डिपेंड है तुम्हारे पास प्रॉब्लम कितना बड़ा है उसको सॉल्यूशन करने के लिए। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि मुझे एक व्हीकल डिजाइन करना है, तो सबसे पहले मैं जीरो से स्टार्ट करूंगा व्हीकल डिजाइन करने के लिए। मेरे पास 1000 सीसी का व्हीकल बनाना है, मेरे पास इंजन यहाँ से परचेस करूंगा, उसके लिए मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया का स्पेसिफिकेशन है। वो स्टफ्स कंक्लूड करने के लिए इस तरह से पूरा स्पेसिफिकेशन लूंगा, तो उसके लिए मेरे को 3 to 4 years तो मिनिमम चाहिए फॉर द डेटा कलेक्शन, फॉर द प्रोटोटाइप, फॉर द ब्रेनस्टॉर्मिंग, ऑल दोस थिंग्स, राइट। तभी जाके कंपनी लॉन्च कर रही है, कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करती है, उसके पीछे इतने साल तो निकल जाते हैं ये डिजाइन प्रोसेस करने के लिए, right? A prototype means only a CAD model. We need to create a CAD model, and after that CAD model is a product design. Prototype means only a one single product for the testing purpose, for the actual failure. वो फेल हो जाएगा है कि नहीं होगा है, वो हमें चेक करने के लिए हम प्रोटोटाइप बनाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज टेस्ट एंड इवोल्यूट। टेस्ट एंड इवोल्यूट मीन्स बिल्ड अप अ प्रोटोटाइप। हम प्रोटोटाइप बना देते, उसके बाद हम टेस्टिंग करेंगे उसको, राइट। अभी डिस्कस किया था हमने प्रोटोटाइप पे, टायर बनाने वाले थे, टायर को हम मैन्युफैक्चरिंग कर देते, चलो सिंगल प्रोडक्ट ही मैन्युफैक्चरिंग करना है, मॉडल और प्रोटोटाइप में सिंगल करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? टेस्टिंग एंड इवोल्यूट। टेस्टिंग एंड इवोल्यूट मीन्स वी कैन टेस्ट दैट प्रोडक्ट into the different views, right? different views पे हम क्या करेंगे? उसको टेस्ट करेंगे, बिल्ड अप अ प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप का वर्जन लेंगे, उस पे हम क्या करेंगे? टेस्ट योर सॉल्यूशन एंड सप्लाई दैट फीडबैक, उसके पास से फीडबैक लेंगे। जैसा पिक्चर्स में बताया हुआ है, तुम्हारे पास एक सिंपल लॉजिक लिया है कि कोई भी हम सिंपल एक प्रोडक्ट बनाएंगे, उसके ऊपर टेस्टिंग करेंगे, दैट इज वर्किंग और नॉट वर्किंग, we need to test it. First of all we need to going for test it. We are going for test it, it get be failed, we need to going for the further process related to brainstorming, after that choose the design based ideas, going for the first step. if the product going failed, प्रोडक्ट तुम्हारा फेल हो जाता है, तो फिर से हम फर्स्ट स्टेप से शुरू करेंगे उसे, क्यों फेल हो गया वो, तो हमने कुछ ना कुछ उस पर एक्शन नहीं लिया होगा, तभी वो फेल हो गया होगा। तो सबसे पहले फिर से हम इसलिए हम टेस्टिंग करते हैं कि ऐसा ना हो एक्चुअल में कि प्रोडक्ट जो है वो हमारा फेल हो रहा है तो कोई ना कोई लैग की वजह से हो गया है, नहीं तो क्या हो जाएगा, हम यही प्रोडक्ट क्या करेंगे? मैन्युफैक्चरिंग कर देंगे, और एक्चुअल प्रोसेस में जब मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगी,
और लाखों प्रोडक्ट बिक जाएगा, हम प्रोटोटाइप नहीं कर पाए और डायरेक्टली हम मैन्युफैक्चरिंग कर देते वो एक्चुअल में वो फेल हो गया तो, राइट। तो दैट्स वाई वो सभी सरकमस्टेंसेस ले लेते हैं और तब जाके टेस्ट करते हैं इस पे, राइट। और कितना वेट ले सकता है वो, तो मैक्सिमम वेट, जैसा टायर है उस पर मैक्सिमम वेट दे देते हैं कि कितने पे वो एक्सप्लोजिव हो जाएगा, कितने पे वो फट जाएगा, एक्सप्लोजिव हो जाएगा, राइट। ब्लास्ट हो जाएगा, पूरा का पूरा फट जाना चाहिए, वो मैक्सिमम कितने प्रेशर पे फट जाता है। फिर हम स्पेसिफिकेशन उसके जो क्राइटेरिया है उसमें मेंशन करेंगे, मैक्सिमम बर्स्टिंग प्रेशर इज दिस, राइट। तो इसके ऊपर मैक्सिमम प्रेशर जाएगा तो ब्रस्ट हो जाएगा। दैट इज इन अ टेस्ट, इन अ सिंगल प्रोडक्ट टेस्ट। वो तो हमें कस्टमर को पता होना चाहिए। कोई भी चीज में कस्टमर के सेटिस्फेक्शन पे ही हम प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं, राइट। अभी कस्टमर बोल रहा है कि नहीं मुझे तो एक गाड़ी में एसी चाहिए, नहीं मेरी गाड़ी में तो म्यूजिक सिस्टम होना चाहिए, बल्कि सीईओ डिसाइड नहीं करता है कि हम मेरी गाड़ी में नहीं है, उसको म्यूजिक का शौक नहीं है तो मैं गाड़ी में म्यूजिक सिस्टम नहीं रखूंगा। दे आर नॉट डिसाइडेड, द कंपनी हैज डिसाइडेड बेस्ड ऑन कस्टमर फीडबैक। कस्टमर को क्या चाहिए, क्यों, क्योंकि व्हीकल कौन परचेस करने वाला है, कस्टमर। कस्टमर मीन्स यू। ह्यूमन कंफर्ट के लिए, कस्टमर को सेटिस्फेक्शन के लिए ये बेस्ट व्हीकल है कि नहीं है। म्यूजिक सिस्टम चाहिए आजकल, एसी चाहिए, 6 सीटर्स चाहिए, सडान होनी चाहिए व्हीकल से रिलेटेड, राइट। ओपन डोर होना चाहिए, ओपन रूफ होना चाहिए, राइट। तो दैट इज ऑल आर कस्टमर नीड्स, दैट इज नॉट अ कंपनी रिक्वायरमेंट, दैट इज अ कस्टमर रिक्वायरमेंट। कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे से ही हम प्रोडक्ट प्रोडक्ट बनाते हैं, राइट। और आइडियाज में भी जनरेशन जो आइडियाज होता है वो भी हमें बेस्ड ऑन कस्टमर फीडबैक से ही लेना पड़ता है। मार्केट में क्या चल रहा है, अभी मैं कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा, उसको टेस्टिंग करूंगा, इट मीन्स दैट इज रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी। वो एकदम नेक्स्ट टेक्नोलॉजी के रिलेटेड होना चाहिए, नेक्स्ट टेक्नोलॉजी के लिए। ऐसा नहीं अभी मैं ट्यूब डिजाइन कर दूंगा तो ट्यूब तो चल ही रहा है, कोई नेक्स्ट जनरेशन के लिए मैं जो डिजाइन करूंगा वो ह्यूमन कंफर्ट होना चाहिए तो तुम्हारा प्रोडक्ट परचेस करेंगे, राइट। तो वो हम प्रोटोटाइप उसका बनाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसको टेस्ट टेस्ट करेंगे और इवोल्यूट करेंगे, राइट। कोई भी प्रोटोटाइप के लिए टेस्ट और इवोल्यूट बहुत ही नेसेसरी है, तभी पता चलेगा वो प्रोडक्ट हमारा फेल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बल्कि वो फेल हो रहा है, then we need to again a prototype 2 and extract all the failures। प्रोटोटाइप 2 करेंगे, टेस्ट करेंगे, उसको लोड टेस्ट करेंगे और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देके टेस्ट करेंगे, बाद में ऐसा होगा थ्रस्ट करके टेस्ट करेंगे, राइट, ब्लास्ट करके टेस्ट करेंगे, फायर देके टेस्ट करेंगे। देयर आर ऑल द टेस्ट इन दैट प्रोडक्ट एंड वी नीड टू एक्सट्रैक्ट ऑल द फेलियर्स। हमें सब फेलियर्स को निकालना है और उसके बाद हम उस प्रोटोटाइप 2 करेंगे। प्रोटोटाइप 2 पे भी फिर से टेस्टिंग होगा, फिर से सेम टेस्ट होगा, दैट आर फेल्ड इन प्रोडक्ट और नॉट। देन इफ इट इज फेल देन वी नीड टू डिजाइन प्रोटोटाइप 3। तो ये फेस है, प्रोटोटाइप 1, प्रोटोटाइप 2, प्रोटोटाइप 3, देयर आर फेस इन डिजाइन प्रोसेस। हमें सब फेलियर को एक्सक्लूड करते करते हमें आगे तक जाना है। हम ये एक्सक्लूड नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा कि प्रोडक्ट तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग के वक्त फेल हो जाएगा। जब कस्टमर के पास जाएगा तो कुछ कुछ व्हीकल तुमने देखा होगा, कुछ व्हीकल क्या हो जाता है कि फेल हो जाता है। कुछ बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनी ने इतनी बड़ी बड़ी व्हीकल्स लॉन्च की है तो उसमें कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो फेल है, जो चल नहीं रही है मार्केट में। क्यों? ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस like taste and failures, they are not evaluate that failures into the good ideas, right। उसको फेलियर को गुड आइडियाज में कन्वर्ट करने थे, उन्होंने नहीं किए। जैसा प्रोटोटाइप 1, 2, 3 ये करने में करोड़ों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर देते व्हीकल को डिजाइन और सब करने में। क्यों? क्योंकि हमें बेस्ट व्हीकल को डिजाइन करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट फेलियर को एक्सक्लूड करना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो मैन्युफैक्चरेबिलिटी और कस्टमर नीड्स में प्रॉब्लम आएगा, कोई परचेस नहीं करेगा फिर व्हीकल। दैट्स व्हाई वी टेस्टेड द प्रोटोटाइप एंड इवोल्यूट दैट फेलियर। नेक्स्ट,
improve. Improve means if you have tasted the vehicle, if you have tasted the product, tasted, and after that come to the result, prototype 1, prototype 2, and prototype 3. That is last one, prototype 5 is a good product. After such a good exclude all the failures, all the failures, right? We have exclude all the failures, it means that is a good product. But they are going to the manufacturing and the customer are using. अभी क्या हो रहा है कि कस्टमर हमारा प्रोडक्ट यूज कर रहा है 1 साल तक, कंटिन्यूस यूज कर रहा है 1 साल तक. अभी कंटिन्यूस यूज करने के बाद भी क्या होता है कि कस्टमर के पास कुछ ना कुछ न्यू इम्प्रूवमेंट चाहिए, न्यू इम्प्रूव चाहिए. जैसा कि एग्जांपल लेते हैं, जैसा मोबाइल फोन हो गया. मोबाइल फोन में पहले कैसा था कि स्मार्टफोन नहीं था, कीपैड वाला था, लेकिन फोन तो चलता था, राइट? तो अभी स्मार्टफोन आ गया है. दैट मीन्स जैसा कि नोकिया हो गया, सैमसंग हो गया, वो लोगों ने भी डेवलप किया है, जैसा व्हीकल में भी होता है, राइट? डेवलप करते हैं. तो उसी तरह से मोबाइल फोन में भी डेवलप हो गया. जैसे इस तरह से 3G आया, 4G आया, they are developing, right? The product will be same, function will be same. Call is like a outgoing, incoming, all are same. It means a function will be same. व्हीकल है, व्हीकल का फंक्शन क्या है? ड्राइव. यहाँ से हमें को कोई अनदर लोकेशन पे जाना है तो फंक्शन विल बी सेम, फंक्शन चेंज नहीं होना चाहिए. मटेरियल विल बी डिफरेंट, दैट इज ओके, बट फंक्शन चेंज नहीं होना चाहिए. इट मीन्स इम्प्रूवमेंट. अब हम इम्प्रूव करेंगे. मोबाइल फोन है तो कॉलिंग के लिए हम यूज करते हैं, पहले भी कॉलिंग के लिए यूज करते थे, अभी भी कॉलिंग के लिए, लेकिन उसमें फीचर्स आ गए, राइट? डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स लाइक व्हाट्सएप एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट? हम एप्लीकेशंस यूज करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन, दैट इज अ इम्प्रूवमेंट. तो प्रोडक्ट विल बी सेम. तो कंपनीज क्या करती है, हमारे प्रोडक्ट को ही इम्प्रूव करती है. इट मीन्स प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, PLC बोलते हैं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में हमें प्रोडक्ट को क्या करना पड़ता है, इम्प्रूव करना पड़ता है. इम्प्रूव करते वो लोग को इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट होना बहुत जरूरी है. इम्प्रूव, कोई भी प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने के लिए एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट होना बहुत ही जरूरी है. जैसे कि इम्प्रूवमेंट में अभी भी देखो, अपोलो टायर्स जो इतने ईयर से काम कर रही है, लेकिन वो अभी ट्यूबलेस टायर पे काम कर रही है. पहले ट्यूब पे काम करती थी, अब ट्यूबलेस. देयर इज अ टेक्नोलॉजी डिफरेंस, देयर इज अ टेक्नोलॉजी डिफरेंस. 2008-9 से वो लोग काम कर रही है. पहले ट्यूब्स पे काम करती थी, ट्यूब्स एंड टायर्स वो होता है, आफ्टर दैट दे वर्किंग ऑन अ ट्यूबलेस टायर. डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज ले लो, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी, MNC कंपनी है जो काम कर रही है इम्प्रूवमेंट रिलेटेड. वो प्रोडक्ट चेंज नहीं करती है, लेकिन उसकी खुद की टेक्नोलॉजी में डिफरेंस आता है. कोई भी टेक्नोलॉजी में डिफरेंस आता है. अभी देखोगे तुम, जैसा कि ये एग्जांपल, लाइक एग्जांपल महिंद्रा एंड महिंद्रा, देखो अभी उस पे काम कर रही है, जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे काम कर रही है, राइट? इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, देयर इज अ इम्प्रूवमेंट. मीन्स कल जाके मेरे पास पेट्रोल और डीजल नहीं है, तो मैं किस तरह से, एक टाइम पे ऐसा होगा कि पेट्रोल हमारे पास नहीं है, तो इम्प्रूवमेंट क्या, इंजन किस पे काम करेगी, वाटर पे काम करेगी, एयर पे काम करेगी? नहीं. ऑल्टरनेट सॉल्यूशन, व्हाट इज ऑल्टरनेट सॉल्यूशन? ऑल्टरनेट सॉल्यूशन लाइक दैट वी कैन यूज इलेक्ट्रिसिटी, राइट? तो वो बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स पे भी काम कर रही है. दैट इज इम्प्रूवमेंट, टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट. 2026 आएगा, 2030 आएगा, तब जाके मेरा प्रोडक्ट लॉन्च होना चाहिए. तब जाके मेरे पास पेट्रोल नहीं होगा, तब मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए काम करते हैं इन अ सेम व्हीकल, सेम. उनका प्रोडक्ट चेंज नहीं होगा. प्रोडक्ट इज लाइक अ व्हीकल, महिंद्रा एंड महिंद्रा वर्किंग ऑन अ व्हीकल. तो प्रोडक्ट चेंज नहीं होगा, प्रोडक्ट इज गोइंग फॉर द इम्प्रूवमेंट ओनली. वी कैन रिप्लेस द engine petrol engine into the electrical engine. It like operated on a vehicle, operated on a battery, right? तो बैटरी, फिर बैटरी पे वर्क करते हैं कि बैटरी हम इतने सारी कहाँ से लाएंगे, राइट? सो आफ्टर दैट the all the process going from the zero to it like a zero to means going forward, define a problem like we need to design a vehicle, it's a electrical operated.
दैट इज अ प्रॉब्लम, राइट। हमको इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड व्हीकल बनाना है, दैट इज अ सॉल्यूशन। बट हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास पेट्रोल नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, तो ये हमारी प्रॉब्लम हो गया। फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, देन गोइंग फॉर द रिसर्च, देन आफ्टर डेवलपिंग द आइडियाज, देन चूज द बेस्ट आइडियाज, राइट। तो ये स्टेप बाय स्टेप्स होता है, देयर इज अ डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स, इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स है डिजाइन प्रोसेस के लिए, वो उस पे हमें वर्कआउट करना है और डिजाइन को इम्प्रूव करना है। तो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है इनटू अ सेम प्रोडक्ट। जो कंपनी सेम प्रोडक्ट पे काम करती है, डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज को लेके काम करती है, इम्प्रूवमेंट करती है, वही वही वो बहुत सारी कंपनी है जो अभी भी काम कर रही है, अभी भी बेस्ड है, राइट। जो नवीनो कंपनी है वो सेल बनाती है, अभी भी सेल ही बना रही है, ना कि व्हीकल बनाएगी। प्रोडक्ट विल बी सेम, राइट, प्रोडक्ट विल बी सेम, फंक्शन विल बी सेम, वो भी चार्ज बैटरी नॉन चार्जेबल, पहले नॉन चार्जेबल सेल्स आते थे, अब चार्जेबल भी सेल्स आते हैं, राइट। देयर इज अ डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज, बेस्ड आइडियाज इनटू अ डिफरेंट प्रोडक्ट्स, वो लोग को हार्डवेयर में कन्वर्ट कर देते। आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग होना चाहिए, आइडियाज जो रिलेटेड होता है ना, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग होना चाहिए, तभी जाके वो हम एक्चुअल, बल्कि ऐसा नहीं है कि वो राइट आइडियाज हो, वो रॉन्ग भी हो सकता है, बट इनटू द फेलियर में से ही बेस्ट आइडिया आते हैं, राइट। फेलियर में से जब फेल होगा तभी पता चलेगा कि ये फेल होगा, दैट इज नॉट अ बेस्ट आइडिया, बट वी नीड टू थिंक अबाउट इट, and we need to convert all the ideas into a actual product, actual hardware, right। उसके लिए हमें ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स, ये फॉलोइंग फ्रॉम द डिफाइन द प्रॉब्लम से लेके इम्प्रूवमेंट डिजाइन तक, ये फेस है डिजाइन प्रोसेस के लिए। ये एक एक्चुअल प्रोसेस है डिजाइन के लिए, ये कंक्लूड करना बहुत जरूरी है जब कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हो, राइट। Improvement, okay, and that's all for the my sides, and thank you, Parul University and Silas sir and Sahil Khatri sir, for giving me the good opportunity to explore my knowledge for the students as well, and thank you students, thank you sir. Thank you so much, sir. Thank you so much for giving the webinar on product design. Your expert talk is very useful to our first and final year students. And I hope you again connect with us in the future. So thank you so much, sir. Thank you students, thank you sir. Okay, so we end here. Okay, Sahil sir. Okay, sir. Okay. Thank you, Harish sir. Thank you sir, thank you sir. Thank you.